Good afternoon, ma'am. Uh, it's my immense pleasure to introduce you to our participants. Professor Asmita Huda, Principal, Chamber Colony Yuvak Mandal, Harshad College of Special Education, is active in the field of disability management and special education for more than 3 decades. Collaboration and empathy are her core values. She is the first Indian postdoc Fulbright scholar in education of the children with deafness. As the chairperson of Board of Education, Board of Studies in Special Education at University of, she is instrumental in establishing Center for Disability Studies and evolving disability policies for UN. 3 students have completed PhD under her guidance. She has contributed in development of several textbooks for many universities for diploma, bachelor's, and master level. Research, inclusion, language assessment, curriculum development, and Indian Sign Language are areas of her professional interest. We welcome you, ma'am. Over to you. So much. I'll just share my slide. Give me a moment. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Yes, Only ma'am. thing is, hi, Dr. Ban. I want to add, I've already a friend in me as a friend in Hold on, Thank you hold so on. much. Thank you so much. Till my technology runs. Hold on. Glitches we have to bear. Thank you so much. Trying to. Thank you. Are you able to see my? Yes, ma'am. We can see your slides. Okay. So, there are some with my camera. Yes, yes. So, I'm sorry you will not be able to see me, but I'll just go on. Um, Must add here, this is so strange. Yesterday, Dr. Varsha Gattu's session, she couldn't turn her video on at all. So at the oh, selfie and share the selfie which everybody could see. So I think that symbiotic relationship between the two of you. So we indeed. might do the same today. Yes, indeed. All right, the floor is yours. The floor is yours. Thank Thank you. you Thank you. very Yeah. much, Yeah. SNDTDAC, Dr. Khan and the team. It is always a pleasure to platform you with you all. So I'm very happy that I'm supposed to talk about opera definitions. ये मेरा रिसर्च में जो होता है उससे सबसे हिस्सा है जब भी कोई पीएचडी या एमएड या लेवल के डिसर्टेशंस या थीसिस मेरे पास आते हैं तो फर्स्ट पेज जो मैं जाके देखती हूँ उस थीसिस में या डिसर्टेशन में वो ऑपरेशनल डेफिनेशन का होता है समवेयर आई फील डेफिनेशंस अगर किसी रिसर्चर ने ठीक से किए हैं द वन हु रीड्स द रिपोर्ट उसके लिए उसकी पर्सनालिटी को जानना आसान हो जाता है एंड देन वो रिसर्च फॉल्स इन प्लेस सो लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशनल डेफिनेशंस मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करने वाली हूँ मैंने पहले भी कहा था कि आई वुड लाइक यू टू बी विथ योर पेपर एंड पेंसिल थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करेंगे थोड़ा हैंड्स ऑन ट्राई करेंगे थिंग्स यू नीड सिट बैक रिलैक्स एंड एंजॉय बेसिकली जो भी सेशन है आप लर्न तो ज़रूर करेंगे बट एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सिट बैक एंड रिलैक्स गिव मी थोड़ा सा अटेंशन थोड़ा सा थिंकिंग एंड अ पेपर एंड पेंसिल अगर इतना आपके पास है तो आई एम गुड टू गो आई एम हैप्पी तो हम लोग ऑपरेशनल डेफिनेशन वाले हैं उसके पहले एक सिंपल सवाल
आप किसी के घर जाते हैं या कोई आपको पूछता है चाय या कॉफी, दे आस्क यू वेदर यू वुड लाइक टी और कॉफी, तो ऐसे में आपका जवाब जनरली क्या होता है? जैसे टी और कॉफी, दैट्स इट। और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसमें आप कहे लेट मी थिंक, आई गेस, मुझे लगता है, इस तरह से आप करते, या यू नो द मोस्ट हेटेड वर्ड बाय मी इज कुछ, चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, कुछ भी, वॉट एवर, विच एवर, ये आपका जवाब रहता है। या यू मेकिंग, व्हाट वुड यू वांट, तुम्हें क्या बनाना है, इस तरह से आपका रिस्पॉन्स होता है। और या फिर कुछ लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा होता है, ओके आई विल हैव हाफ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी विथ 1 स्पून ऑफ शुगर विथ थिक क्रीम। तो आई वुड लाइक यू टू थिंक, टेक अ पॉज एंड सोचिए कि इसमें से कौन सी पर्सनालिटी आपकी है, जनरली आप क्या होता है। ऑन दैट थॉट विल कम बैक टू दैट। मेरी कथा शुरू करने के पहले, इस कथा का कोई भी है, आई विल इंट्रोड्यूस हिम, बट उसके पहले आई वांट यू टू जस्ट थिंक अबाउट समथिंग। देयर इज अ क्लासरूम इन विच देयर इज अ टीचर which says what is weight, वजन का मतलब, and we have Ravi Kumar, Naveen Kumar and Kumar answering that. Raj Kumar says the body's relative mass. Ravi Kumar says quantity of matter contained by. Naveen Kumar कहता है property of a matter giving rise to word force. And Mapan Kumar कहता है the numbers that appear when an object is placed on a weighing scale. So I stop here for seconds, 10 to 20 seconds. I want you to reread this, the difference between the 4 responses. अब मैं एक बात आपको बता दूं कि चारों responses, so please as a teacher don't try to think कि कौन सा गलत है. Just see ये 4 में से कोई एक odd man out है definition, so think about क्यों है. So I take a pause. I want you to reread this and reflect on it कि क्या फर्क है इन 4 definition. Yeah, somebody is saying कि second one is appropriate. Hold on. Hold on your thoughts. We are going to go through this. Just take a think about it. Yeah. So जो भी आपका जवाब हो, thoughts हो, please write it down in your pad using your pen, pencil, whatever. We are going to revisit this after the session. हम लोग इसी आने वाले हैं. तो अभी आप आपके जो भी 2, 3, 4 आपके थॉट्स है वो आप रखिए. जब हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, आफ्टर द जर्नी यू विल नो कि शुरू में आपके थॉट्स क्या थे. तो जैसे कि ये एक हीरो की कहानी है और उसका नाम है मापन कुमार. ये जो मापन कुमार है, ही इज अ स्मार्ट बॉय बट ही हैज़ अ डिसऑर्डर. उसको एक डिसऑर्डर है और उस डिसऑर्डर का नाम है क्वांटिफिकेशन. ये स्मार्ट है, सी द अपर केस SMART द वे इट इज रिटन. मापन कुमार का जो डिसऑर्डर है उसका नाम है क्वांटिफिकेशन. ये डिसऑर्डर सिम्टम्स क्या है? तो उसके सिम्टम्स ये है ऑब्सेशन फॉर नंबर्स. ये जो मापन कुमार है उसको नंबर्स बहुत पसंद है. हर चीज को वो नंबर में कन्वर्ट करना चाहता है. हर चीज उसको तभी समझ आती है जब आप उसको नंबर के साथ समझाते हो या बताते हो. व्हेन यू मेक थिंग्स वेरी स्पेसिफिक एंड मेजर, तभी उसको समझ में आता है. ये उस डिसऑर्डर का एक सिम्टम है. दूसरा एक सिम्टम है लो टॉलरेंस टू एम्बिग्विटी. बिल्कुल
मतलब है, मीनिंग क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, उसको बिल्कुल ये पसंद नहीं, उसको लो टॉलरेंस है। ऐसी कोई भी चीज जब वो सुनता है विच इज बुखार आ जाए, he experiences fever because of low tolerance to ambiguity. Also, he has low tolerance to inconsistency. अभी ये कहा, अभी वो कहा, you said कि चाहिए, थोड़ी चाहिए, then he will, थोड़ी मतलब कितना, आधा कप या पौना कप, how much do you want, tell me exact. तो कभी आप थोड़ी इस कहेंगे, कभी आप थोड़ी उसको कहेंगे, इनकंसिस्टेंटली आप टर्म्स को यूज करेंगे, उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता है बिकॉज ऑफ हिज डिसऑर्डर कॉल्ड क्वांटिफिकेशन, एंड ही हैज सीवियर एलर्जी टू कैजुअल यूज ऑफ टर्म्स। कभी ओपिनियन कहा, कभी एटीट्यूड कहा, कभी थॉट प्रोसेस कहा, कभी कमेंट कहा, एंड देन यू से सिमिलर ही तो है, एक जैसे ही है ना। He doesn't like that. He has severe allergy to casual use of terms. उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि आप टर्म्स को है फ्लिप फ्लॉप करते हैं, कभी ऐसा कभी यू नो एंड लाइक दैट। सो अभी हमारा ये जर्नी है, छोटी सी जो जर्नी है टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेशनल डेफिनेशंस आर, हम लोग ये जो मापन कुमार है उसको खुश करने की कोशिश करने वाले हैं। We are going to try and make मापन कुमार happy, so because उसको जो डिसऑर्डर है उसको तकलीफ ना हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। एंड हमारे जब भी हम वी विल ट्राई टू मेक द टर्म्स ऑपरेशनलाइज, हम मापन कुमार की तरफ देखेंगे कि है क्या उसे पसंद आया है, उसकी एलर्जी को आर वी डीलिंग विद दैट। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल देती हूँ, किसी गेट टुगेदर में मापन कुमार वॉज देयर and somebody casually said, old men are more religious, you know. Bas, Mapan Kumar rushed to that person and said, what do you mean by old men? You mean above 60 or above 70 or above 80? क्या कैसे आप क्लियर करना चाहोगे when you said old men? What do you more than women या more than youngsters? More का मतलब एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस? जो ज्यादा पूजा करता है, ज्यादा टेम्पल में जाता है, दान धर्म ज्यादा करता है, या उपवास ज्यादा दिन रखता है, यू विल हैव टू मेक क्लियर। ये सब बातें पहले क्वांटिफाई करो, समझाओ, एंड देन मेक अ स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली जिसने ये स्टेटमेंट किया था उसने वो विड्रॉ कर दिया बिकॉज ही वॉजंट रेडी विथ ऑल दीज क्वांटिफिकेशन। सो आर यू गेटिंग इट? मापन कुमार जो रेस्टलेस हो जाता है जब भी कोई चीज कहते हैं, इनकंसिस्टेंटली कहते हैं, या फिर एम्बिग्यूअस कहते हैं, क्लियर नहीं। ओल्ड, यू विल हैव टू क्लैरिफाई कि व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड, तभी वो स्टेटमेंट का मतलब बनता है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, बट इन जनरल ऑल्सो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, somebody just casual, Maharashtrians, no, Maharashtrians are intelligent. मापन कुमार वही था, आके कॉलर पकड़ ली और कहा अच्छा, born in Maharashtra or Marathi speaking or living in Maharashtra for minimum 15 years or whose parents are from Maharashtra, किसको आप महाराष्ट्रियन कहोगे? पहले वो क्लियर करो। Then when you said intelligent, okay, कौन सी IQ टेस्ट, what score range, वो सब क्लियर करो। And then when you said of all, अच्छा तो महाराष्ट्रियंस की तुलना आप वाइड लैंग्वेज कम्युनिटी के साथ कर रहे हो या दुनिया भर की कम्युनिटीज के साथ कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, क्लियर करो। तो ये जब सब बातें क्लियर होगी तो ही मापन कुमार विल लेट यू कंप्लीट योर स्टेटमेंट। टिल देन उसके जो वीकनेसेस है वो उसको शांत बैठने नहीं देंगे और आपको आपका स्टेटमेंट पूरा नहीं करने देंगे। थोड़ा ये कम्युनिकेशन ऐसा हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू गो स्लो थ्रू चैट। अगर इफ यू वांट टू स्टॉप मी प्लीज डू दैट। आई एम गोइंग लिटिल स्लोअर इन द बिगिनिंग, बट आई जो हमने शुरू के सिम्टम्स देखे दैट मापन कुमार डजंट लाइक इनकंसिस्टेंट। अगर हमने बोला कि महाराष्ट्र को हमने ऑपरेशनलाइज किया है, सेइंग दोज हु आर लिविंग इन
for 15 years, then इसी मीनिंग को हमें पकड़ के रखना होगा क्योंकि उसको ऑपरेशनलाइज किया है. And consistently and clearly we will have to stick operationalization. उसको हमने measurable किया है, उसको लॉक करना है और टाइटल से लेके ऑब्जेक्टिव से लेके हाइपोथेसिस लेके टूल डेवलपमेंट, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन तक ये स्ट्रीम जाएगी, जहाँ हर जगह when the researcher says Maharashtrians, he means those who are living in Maharashtra for minimum 15 years. जो भी आप, if you define it by Marathi speaking, then you can define it that way. But एक बार एक टर्म को क्वांटिफाई किया, ऑपरेशनलाइज किया, कंसिस्टेंटली यूज करना है. So every time we look at the statements very आते जाते हम लोग तो कितनी बातें करते रहते हैं. You know, ये लोग ऐसे होते हैं, that girl is like that, that man that, all these are our जब तक वो प्रूव नहीं होते हैं एविडेंस बेस्ड लेवल पे, तो बायस रिसर्च की डिग्री फर्क तो होना चाहिए. तो इसीलिए रिसर्च वेरिएबल्स, कंसेप्ट्स, जो भी आप कहना चाहोगे, यू विल हैव टू यूज देम वेरी क्लियरली. You have to make things clear to yourself and you will make things clear to the readers of the research. जो भी रिसर्च का आपका रीड करने वाला है, he shouldn't have any questions in the mind कि अरे इसने तो कहा कि बच्चों के अग्रेशन के बारे में बात की है, बट पता नहीं व्हाट डज इट मीन बाय अग्रेशन, ये है या वो है. ऐसा सवाल रीडर के मन में नहीं आना चाहिए. एंड दैट इज द गुड रिसर्च रिपोर्ट. एंड ऑब्वियसली वही रिसर्च रिपोर्ट अच्छा होगा जो रिसर्च अच्छा होगा. एंड व्हाट डू आई मीन बाय अच्छा? आई मीन एवरीथिंग, नो डाउट, नो एम्बिग्विटी, inconsistency, and of course no use of casual terms. कभी ये कभी वो, कभी उस महाराष्ट्रियन का मतलब मराठी स्पीकिंग है, कभी महाराष्ट्रियन का मतलब वो है जिनके पेरेंट्स महाराष्ट्रियन. ऐसा नहीं चलेगा. इसलिए शुरू में ही we need to operationalize what do we mean by X, Y, Z. Now let's take statement. किसी ने कहा कि children lose interest in home cooked food as they grow. Yeah, so I wait here for 20 seconds. You to make a list of questions that Mapan Kumar would ask. अगर आपने कहा होता कि children you know they lose interest in home cooked food as they grow. बच्चे जैसे बड़े होते हैं ना, वैसे उनका घर का खाने में रुचि ही नहीं रहती है, कम होती जाती है. ये जब हम आजू बाजू में देख लो मापन कुमार है तो नहीं, अगर है तो वो आएगा और आपकी कॉलर पकड़ेगा, पूछेगा. क्या पूछेगा? Please use your pad and write down. Some of you are giving some responses through chat, right? Age, growing age, you want to define ki what do you mean by growing age? Very good. Anything else you need to define? Yeah, what age? Correct. अगर growing age कह रहे हैं तो कौन सा age को आप growing age कहेंगे? Very good. Somebody says home cooked food. हमको लगता है कि अरे होम कुक फूड तो ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आता है. रिमेंबर दैट सब्जेक्ट को रूल आउट करना है, सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज करना है. इंटरेस्ट, किसी ने कहा कि इंटरेस्ट को भी ऑपरेशनलाइज करना होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय इंटरेस्ट, व्हाट डू वी मीन बाय लूजिंग इंटरेस्ट. दोनों को ऑपरेशनलाइज करना होगा. बिहेवियरल टर्म्स में उसको पकड़ना होगा. You know, operational definitions capture the essence of meaning in the mind of the researcher. So what do you mean by home cooked? Yes. What do you mean by food? Yes. What do you mean by growing children? What do you mean by children? What do you mean by interest? What do you mean by losing interest? Very good. तो ये जो मापन कुमार का डिसऑर्डर है वो बहुत वायरल हो जाता है. हाँ, उस एंगल से हम चल पड़े तो एवरीथिंग वी वांट इन मेजरेबल टर्म्स, उसके सिवा हमारा सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता है.
and that I'll tell you is a good part of personality. So here we lose interest in home cooked food as we grow. ये अगर सेंटेंस है तो हमको बताना होगा, रिसर्च के शुरू में ही डिसाइड करना होगा, फ्रेम करना होगा और लॉक करना होगा, ताकि वी यूज इट कंसिस्टेंटली कि चिल्ड्रन, व्हाट डू वी मीन बाय चिल्ड्रन, व्हाट एज चिल्ड्रन आर वी टॉकिंग अबाउट. इंटरेस्ट लेवल है तो व्हाट, हाउ कैन वी मेजर इंटरेस्ट लेवल. Are we, when we say children, are we talking about Indian children, world children, children in Maharashtra, children in Mumbai, children in Bandra? We will have to operationalize, delimit the scope. Urban, rural, कौन से बच्चों की बात कर रहे हैं? Children with disability, children with hearing impairment. When we say children, are we talking about girls, boys, third gender? Are we talking about both, all types? When we say losing interest, how are we going to capture? Yeah, we need demographic details of the children and we will have to mention that in our operational definition. Correct. So how are we going to measure losing interest? Losing interest ये बहुत abstract concept है. इसको हम किस तरह से capture? Do children avoid food? खाना खाओ, बुलाया है मम्मी ने या पापा ने बुलाया, they take time to come to table. Is that an indicator? Faces while having food, या रिड्यूस्ड क्वांटिटी, रोटी है तो 2 ही चाहिए, पिज्जा है तो 4. सो व्हाट आर द बिहेवियरल इंडिकेटर्स जिसको हम काउंट करेंगे, मेजर करेंगे, ताकि वी विल बी एबल टू कमेंट ऑन लूजिंग इंटरेस्ट. लूजिंग इंटरेस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, वो हर किसी के दिमाग में है, और जो चीज किसी के दिमाग में है क्लियरली स्पेल आउट नहीं किया जाए, ambiguous. So it is researchers' right and freedom. Pay attention to both the words I used. It is the right and freedom of the researcher to decide what operational definitions he or she wants to frame. But अच्छी तरह से frame करना बहुत somebody is saying it could be due to peers. Very good, but here let's keep the focus on losing interest by a group of children. We are not trying to find the reason. Be focused. Look at the statement. Is it talking about why is it happening? Is it talking about is it good or bad? Is it talking about क्यों होता है? No. It is just trying to measure. अगर होता है तो किस लेवल का होता है क्या? अगर होता है तो लेवल या डिग्री क्या है? सो बी फोकस. लेट्स नॉट गो इनटू क्यों होता है, ये बहुत बुरी चीज है, ये तो टीवी का इन्फ्लुएंस है. नहीं, हम लोग इसकी नहीं चर्चा करेंगे, बिकॉज देन वी विल लूज आवर फोकस. आवर फोकस इज वेरी स्पेसिफिक. वी आर नॉट गोइंग टू बिकम जजमेंटल अबाउट एनीथिंग. वी विल नॉट लेट आवर बायस रोल. अगर मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे बाहर का बहुत खाते हैं और ये अच्छी चीज नहीं है, I will not let that bias play any role when I operationalize that. Yeah, so next is home cooked against what food? When we say home cooked की तुलना और food के साथ करनी है, तो what food are we comparing it to? And I am going to skip this because somebody did say when we say growing children, we will have to operationalize. Are we talking about 6 to 12, 8 to 17, 10 to 80? जो भी है, as I said, it is the freedom of the researcher to decide आपको कौन सा एज लेना. There will be lot of professional judgment, lot of review of literature जो करना होगा और decide करना होगा when you decide an age group. But ultimately ये आपका रिसर्चर का फ्रीडम रहेगा कि आपको किस एज के बच्चों को लेना है, किसको होम कुक्ड फूड कहना है, अर्बन लेने, गर्ल्स लेने हैं, बॉयज लेने हैं, एंड किस चीज को इंडिकेटर मानना है, किस चीज को लूजिंग इंटरेस्ट का इंडिकेटर नहीं मानना है. ऑल दैट इज रिसर्चर्स फ्रीडम and researchers' right and researchers' responsibility to make it very clear. So far, so good.
I hope everybody is with me. Well, I'm trying to be little slower, but पता नहीं हमारा Pitaji, you are सेशन कितने बजे perfect. चालू हो गया, कितना टाइम है. I'll just go Don't on worry. and I depend on Betty or Yukti to let me know when I over. So Ma'am, we're bang Mapan on Kumar time right now. disorder is helpful in research. ये जो क्वांटिटी का डिसऑर्डर है ना, वो बहुत यूजफुल है रिसर्च में. वन हैज टू हैव अ टेम्परामेंट. बहुत सी चीजों, बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सिंसियर कोई बच्चे होते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बट वो टेम्परामेंट होना आवश्यक है जहाँ पे you know your biases, you want to keep them to minimum, move on to review of literature and operationalize things consistently and clearly. It is like reading the mind of the audience, reading the mind of the one who is reading the report of the research. उसके मन में क्या डाउट होता होगा. अगर मैं ऐसा कहूंगी तो उसको क्या क्वेश्चंस रहेंगे. लेट मी आंसर दोज क्वेश्चंस. बिकॉज रिमेंबर, जब कोई रिसर्च का रिपोर्ट पढ़ता है तो इट इज अ मोनोलॉग. आप जब किसी और का रिसर्च पढ़ेंगे तो वो रिसर्चर सामने नहीं है आपको समझाने के लिए कि मैंने ना होम कुक्ड फूड में ना ये लिया और ना मैंने ये नहीं लिया. दिस इज नॉट होम कुक्ड फूड फॉर मी. दिस इज व्हाट आई डिफाइन होम कुक्ड फूड. देयर इज नो रिसर्चर इन फ्रंट ऑफ यू. The complete research has to be penned down in the report or thesis or dissertation. There is no dialogue there. There is no interaction. तो किस तरह से हम हमारा रिपोर्ट एंड रिसर्च ऐसा मोनोलॉग बनाएंगे कि वो पढ़ने के बाद अबाउट द क्लैरिटी. बहुत सारा वाइवा होगा, बहुत सारे इंटरेक्शंस होंगे, बट अबाउट क्लैरिटी देयर शुडंट बी एनीथिंग दैट इज वेग एंड एम्बिगुअस होना चाहिए. सो ये हमारे टेम्परामेंट में होना बहुत आवश्यक होता है कि जब भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी के क्वेश्चन को, एम आई डू आई हैव दैट, जो मैं बोलूंगी क्लियरली और स्पष्ट बोलूंगी ताकि और क्वेश्चन उसको ना पूछने पड़ेंगे. राइट. सो मापन कुमार्स disorder is very okay. Somebody saying speed is appropriate. Excellent. Good for the, thank you for the feedback. एक रिसर्च इस पे भी करेंगे, हाउ फीडबैक हेल्प्स द रिसोर्स पर्सन्स इन. ये एक अच्छा टॉपिक रहेगा. ओके. सो मापन कुमार का जो एक क्वांटिफिकेशन का डिसऑर्डर है, बहुत अच्छी चीज है. अगर वायरल होके आपके पास आता है या पहले से ही अगर आपके पास है, देन यू आर अ गुड कैंडिडेट टू कैरी अ रिसर्च प्रोजेक्ट. सो ऑपरेशंस आर इसेंशियल पार्ट ऑफ रिसर्च. वेरी इसेंशियल. जैसे मैंने कहा कि जब भी मेरे हाथ में कोई थीसिस या डिसर्टेशन आता है, मैं पहले ऑफ कोर्स टाइटल देखते हैं एंड पहले अगर मैं क्या तो आई गो ऑन टू द पेज ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन. वहां से पूरी पर्सनालिटी समझ में आती है रिसर्चर की. बिकॉज ऑपरेशनल डेफिनेशंस आर नॉट कॉपी पेस्टेड. बहुत सारा रिसर्च रिपोर्ट में कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, बट कभी कभी होता भी है. बट ऑपरेशनल डेफिनेशंस आर वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी इंडिविजुअल एंड वेरी वेरी स्पेसिफिक टू दैट रिसर्च प्रोजेक्ट. वही एक रिसर्च के लिए ही उसका वो मानना होता है. मतलब आज अगर मैंने होम कुक फूड पे एक रिसर्च किया और मैंने उसको ऑपरेशनलाइज किया, तो साल के बाद इफ आई डू वन मोर रिसर्च इन द सेम एरिया, होम कुक्ड फूड, आई मे रीडिफाइन द टर्म इन अ डिफरेंट वे. सो पहले की ऑपरेशनल डेफिनेशन इज यूनिक एंड रेस्ट्रिक्टेड टू दैट रिसर्च प्रोजेक्ट. तो ये कॉपी पेस्टेड नहीं होता है, ये दिमाग की क्लैरिटी का सवाल होता है. हाउ क्लियर आई एम, how clear I am in my mind and how clear I am in expressing myself. कितनी अच्छी तरह से मैंने रिपोर्ट में वो लिखना है ताकि there would not be any doubts and ambiguity. These are presented immediately after hypothesis objective to rule out ambiguity and indicate scheme of measurement. तो जनरली आप अगर थीसिस या डिसर्टेशन या रिपोर्ट फंडेड रिसर्च के रिपोर्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन के तुरंत बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन का सेक्शन आता है, आना चाहिए. इट इज अ मस्ट, होना चाहिए, वहां होता है. तो वो इसलिए कि अभी आप
पढ़ रहे हैं तुरंत वहीं के वहीं क्लियर होना चाहिए कि ये हाइपोथेसिस में जो टर्म्स यूज किए उसका मतलब रिसर्चर ने इस रिसर्च के लिए क्या लगाया है. He has to or she has to make it very very clear there and then. So objective या hypothesis या research question which are very very specific, measurable and very unique to that research proposal or project, उसके उतने ही यूनिक ऑपरेशनल डेफिनेशन होंगे जहाँ पे all casual things turn into smart, SART, everything that is specific, measurable. Let's concentrate that. Relevant and time bound also. But everything very specific, everything very measurable and consistent. And minimizing the personal biases. So अभी तक के reflections क्या है? In a research, we cannot use terms which mean different to different people. मैंने कहा कि I'm using a term of smoking behavior of teenage girls and boys. अगर इनका comparison करना है, then what do I mean behavior and what do you mean by smoking behavior and what the other readers mean by smoking behavior has to be one. हम लोग सेम पेज पे होना आवश्यक है, वरना ये कोई एनालिसिस मायने नहीं रखता है, टूल मायने नहीं रखता है, कंक्लूजन्स मायने नहीं रखते हैं, रिकमेंडेशंस मायने नहीं रखते हैं अगर वी आर नॉट ऑन द सेम पेज. आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल कि अगर फ्रेंड को किसी बताएंगे कि हाँ सैटरडे शाम को मिलते हैं बैंड्रा वेस्ट में सीसीडी में मिलते हैं, and then I go there and waiting for an hour in CCD and then calling her up, what is this nonsense, मैं तो CCD में कब से हूँ and where are you, and she said what nonsense, मैं भी बैंड्रा वेस्ट के CCD में 1 घंटे से हूँ. हेलो, आप दोनों सेम CCD में नहीं हो. यू डिडंट ऑपरेशनलाइज कि मैं हिल रोड के CCD की नहीं बैंड स्टैंड के CCD की बात कर रही हूँ. So one needs to be very very specific so that there is no misunderstanding. तो ये तो बहुत कॉन्क्रीट एग्जाम्पल मैंने दे दिया. बट व्हेन इन आर सोशल साइंस एंड एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन में हम लोग डील करते हैं ऑल एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स. ऑल कंसेप्ट्स हैव सेवरल मीनिंग्स एंड सेवरल डायमेंशंस. जब तक हम नहीं कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, तब तक इट इज ओपन एंडेड. इट इज अप टू यू टू डिसाइड इसका मतलब क्या है. दैट शुडंट हैपन because that leads to confusion, and to avoid confusion we must decide the meaning of the term and lock it. Lock it मतलब बार बार you refer to that, tell yourself कि this is what I mean, this is what I mean. जब tool बनाऊंगी तो this is what I mean, tool validity करूंगी तो I'm ensuring this is what it means. जब analysis हाथ में आएगा I will see it in this light. जब when I analyze and discuss I don't lose my focus. I discuss in these terms only. I know what I mean by home cooked food. I know what I mean by losing interest. तो recommendation तक मैं जब पहुंचूंगी conclusions के बाद I will have clear think in my mind कि what do I mean by that. इसीलिए उसको lock करना, लिखना, दिमाग में operational definition कभी नहीं रखना. Always you write it down, reframe it, rephrase it, show it to 10 people. ये तो मेरा एकदम फेवरेट स्लोगन है कि 10 स्ट्रेंजर को दिखाओ, पूछो क्लियर है क्या. अगर उसने एक भी क्वेश्चन पूछा that means it's not clear. Make it clearer, make it more specific, make it more. या सो मापन कुमार बहुत देर से इंतजार कर रहा है हमारा, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. Language levels of children with educated and uneducated parents are different. Again, a casual statement, maybe थोड़ा personal bias है इसमें, but अगर prove करना है, इसको hypothesis बनाना है, research करना है, and you want to sort it out कि ऐसा होता है या नहीं होता है, देख ही लूँ मैं. If you want to do that, then read. I'm taking a pause of 20 seconds. Read and reread the statement and make a list of terms that need specific and measurable. तो प्लीज मापन कुमार खुश हो जाए, इसलिए आप कौन सी टर्म को, पहले टर्म की लिस्ट, डोंट ऑपरेशनलाइज. सम पीपल आर ऑपरेशनलाइजिंग, डोंट.
पहले लिस्ट बनाएंगे, ऑलवेज रिमेंबर क्या टर्म्स को ऑपरेशनलाइज करना है, पहले लिस्ट बनाएंगे, फिर उसको ऑपरेशन मेजरेबल करेंगे. या सो समबडी इज सेइंग अनएजुकेटेड, यस. Children, very good. Language level, excellent. Yeah, when we say children, then we'll have to operationalize ki rural, urban, बच्चे without disability, which disability, girls, boys वगैरह वगैरह. तो हमको लिस्ट में डालना होगा कि चिल्ड्रन को ऑपरेशनलाइज करना है. तो आई एम श्योर आपकी यस लैंग्वेज लेवल, श्योर ये आपकी लिस्ट जो आप बनाई उसमें ये सब टर्म्स आते हैं. लैंग्वेज लेवल डिफाइन करना होगा, चिल्ड्रन को करना होगा, एजुकेटेड किसको कहेंगे, अनएजुकेटेड किसको कहेंगे. बिकॉज एजुकेशन तो अपना मेन वेरिएबल हो गया ना इसमें. व्हेन यू आर कॉन्ट्रास्टिंग द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन एजुकेटेड किसको कहेंगे, अनएजुकेटेड किसको, इसको हमको ऑपरेशनलाइज करना होगा. डोंट फॉरगेट पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी तरह से ऑपरेशनलाइज करना होगा. दिस इज व्हाट आई मीन. बहुत बार हमको लगता है पेरेंट्स, कौन है जिसको पेरेंट्स नहीं मालूम, मालूम सबको है, बट आपका मतलब क्या है पेरेंट्स. आर यू टॉकिंग अबाउट ओनली, फादर्स ओनली, केयर गिवर्स ओनली, मटीरियल ऑफ देयर जेंडर, फिर दादी हो सकती है, बुआ हो सकती है, द वन हु टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड. बायोलॉजिकल पेरेंट्स बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो. व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंट्स. लगता है कि पेरेंट्स तो, बट दिस इज व्हाट इट इज, कैजुअल टर्म है. जब तक हम उसको लॉक न करें तब तक ये टर्म कैजुअल है. एंड देन डिफरेंट, वो स्टैटिस्टिकली हमें बताना होगा कि व्हेन डू आई कॉल इट अ डिफरेंस, दैट वी कैन कीप इट ऑन द होल्ड. Somebody is saying that they want to also see that the parent is communicative or non-communicative, but I would rather suggest कि वो दूसरा research एक हो सकता है where you want to see communicative parents and non-communicative parents के बच्चों के language स्तर में फर्क है या नहीं है. But that's a good parameter, but let's be focused. यहाँ उसको mix up नहीं करते हैं. When you do research, there are range of variables. क्या आपको इंटरेस्ट है, यू विल हैव टू सिलेक्ट वन एंड स्टिक टू दैट. जब आप टर्म को ऑपरेशनलाइज करते हो, अगेन देयर इज अ रेंज ऑफ वे यू कैन डू. बी स्पेसिफिक, मेजर, सिलेक्ट द पैरामीटर्स on the basis of which you want to operationalize them. But is saying mother tongue भी देखनी होगी, yes देखनी होगी. And then again, hold on. Somebody is saying we'll have to see authoritarian parents, कौन से टाइप के पेरेंट्स है. Yes, these can be subject selection criteria, but अभी हम फोकस करेंगे only educated and uneducated parents पे. And then these could be either subject selection criteria कि किस करेंगे रिसर्च में और किसको नहीं करेंगे, और a separate research. जैसे my guide used to tell me कि एक ही रिसर्च करना है क्या, भी वेरिएबल्स इधर ही यूज करने हैं क्या, और बहुत सारे रिसर्च करोगी ना तुम तो कीप सम वेरिएबल्स फॉर दैट रिसर्च आल्सो. डोंट राइट पेरेंट्स बोले तो हर चीज पेरेंट्स से रिलेटेड है वो इस रिसर्च में डालने की कोशिश हम नहीं करेंगे. वी विल स्टिक टू अ सिंपल concept wherein we feel that we need to see the difference between the language level. भाषिक स्तर में दो ग्रुप के क्या फर्क है वो हम देखना चाहेंगे. और दो ग्रुप कौन से हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स का एक ग्रुप है और अनएजुकेटेड पेरेंट्स का एक ग्रुप है. और भाषिक स्तर अभी हमको गिनना है तो वो भी हमको देखना हो. तो चलिए एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड को ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश है. और भी कुछ ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में हमको अगर समझ में आता है और वो भी जानने की कोशिश करते हैं. सो सपोज बीएड का पहले दिन व्हाट इज एजुकेशन से शुरुआत किया था. शिक्षा का मतलब क्या है, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, गांधी जी ने क्या कहा है. दैट वाज बीएड का पहला दिन. देयर इज एन echoing, is it? All those who are using dual devices, please make sure you switch off the audio on one device. Has the echo gone? Is it better now?
Some echo. I don't know why. अभी हुआ या पहले से था? No, पहले ऐसे कुछ नहीं था अभी. Okay, I didn't make any change. Is it better now? You carry on. Asmita ma'am, you can carry on. It's just that some people are using dual devices, so if the audio comes on both, it creates an echo. I'm taking care of it, ma'am. I am, ma'am. अच्छा, लेट मी स्पेसिफिक. आपके स्क्रीन पे नीचे जो लाल रंग का माइक दिख रहा है, उस पे एक बार क्लिक, फिर वो आपको म्यूट हो जाएगा और एकोइंग कम होगा. Okay, so good. Somebody says it's okay now, so I can go ahead. So अगर हमने ये देखा कि एजुकेटेड को अभी ऑपरेशनलाइज करना है, तो मैंने कहा कि those parents in which manifestation of the West within has emerged, उनको मैं एजुकेटेड कहूंगी. या फिर अगर मैंने ये कहा कि those parents whose mind, body and soul have evolved to self realization, उनको मैं एजुकेटेड कहूंगी. और जिनका ये नहीं हुआ है, उनको मैं अनएजुकेटेड कहूंगी. Do you think this operational definition will work? Is this a major and specific and pragmatic operational definition? क्या इसके आधार पर मैं पेरेंट्स को सिलेक्ट कर पाऊंगी कि कौन से पेरेंट्स को एजुकेटेड कैटेगरी में डालना है, कौन से को अनएजुकेटेड? नो. So can this definition work for subject selection? No. Can we select parents on the basis of these operational definition? No. So remember, शुरू में जो हमने देखा, मापन कुमार ने जो डेफिनेशन बताई वेट की, वजन की, we will have to be in tune with the standard book definition, yet उसको मेजरेबल और प्रैग्मेटिक बनाना होगा. फिलोसॉफिकल और स्टैंडर्ड बुकिश डेफिनेशन के आधार पे पॉसिबल नहीं होगा. So we will have to make them measurable. So let us operationalize educated and let us operationalize uneducated. पेपर पेंसिल लीजिए. Let us try to operationalize educated first. दोनों को साथ में नहीं करेंगे, पहले एक टर्म को करेंगे, एजुकेटेड को करते हैं, एंड उसी का बराबर 180 डिग्री कॉन्ट्रास्ट को फिर अनएजुकेटेड कहेंगे. So I take a pause for 20 seconds. I want you to try and write कि अगर आपको 30 पेरेंट्स सिलेक्ट करने हैं और एजुकेटेड की डेफिनेशन बनानी है अपनी खुद की स्वयं की यूनिक, तो आप क्या लिखेंगे? या somebody is talking about the board. Good, but पहले तो लेवल डिसाइड करनी होगी. इसको कट ऑफ जिसको कहते हैं, we'll have to set a cut off कि किसके ऊपर हम एजुकेटेड कहेंगे और किसके नीचे. somebody is saying graduation level. बराबर है, but make a sentence. ग्रेजुएशन लेवल ये ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं हो सकती है. You will have to make a sentence which is clear enough. So like for example, those parents who can produce a certificate of college or university education of not less than 3 years. Again, I take a pause, reread it. It is not only saying that ग्रेजुएशन होना आवश्यक है, इट सेज ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है. एंड इट्स क्लियरली सेज कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है पोस्ट स्कूल, मतलब स्कूल एंड एग्जाम है एसएससी बीएससी जो भी है बोर्ड की, उसके बाद मिनिमम 3 साल का जिसका एजुकेशन हुआ है उसको मैं अपनी रिसर्च के लिए कि एजुकेटेड पेरेंट्स है. प्लीज ये डेफिनेशन अपने रिसर्च को कॉपी पेस्ट मत करिए.
This is not a standard or bookish definition. It is Asmita Huda's definition for research project number 27. It can be changed. It needs to be changed as per the needs. So अगर ये educated की definition है, अभी इसको 180 डिग्री आपको uneducated की definition भी बनानी होगी. So again I take a pause of 10 seconds. Read it, reread it, और किस तरह से इसको contrasting definition आप बनाएंगे. Please pay attention to the topic of discussion. Don't divert. Let's be very focused about only this research project. Many people are giving me ideas about various variables. वो variables लेके आप ज़रूर research करिए. Let us go ahead with this research project in hand. Constantly, specifically, हम इसी को कहेंगे. Never being in school हम नहीं ले सकते हैं. एजुकेटेड को कॉन्ट्रास्ट करना होगा. एजुकेटेड को ऑपरेशनलाइज किया है, अभी अनएजुकेटेड को उसी के साथ कॉन्ट्रास्ट करना होगा. सी अंडरस्टैंड दिस. ओके, लेट मी यूज द टर्म गैप्स एंड ओवरलैप्स. इसका मतलब है किसी भी पेरेंट्स का सर्टिफिकेट देख के ऐसा नहीं चाहिए कि वो ना तो एजुकेटेड में कैटेगराइज होना है और ना तो अनएजुकेटेड में कैटेगराइज हो रहा है. ऐसा गैप नहीं होना चाहिए. सिमिलरली ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ओवर एजुकेटेड में भी जा सकता है, अनएजुकेटेड में भी जा सकता है. ओवरलैप नहीं होना चाहिए. राइट? प्लीज दोज हु आर सेंडिंग मैसेज, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आप वेरिएबल्स को बदल के दूसरे दिशा में मत जाइए. हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट है. वी वांट टू स्टडी द लैंग्वेज लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पेरेंट्स. एंड वी ऑलरेडी हैव डिफाइंड, हमने ऑलरेडी ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाई है एजुकेटेड की. अभी हमको अनएजुकेटेड बनानी है जो सीधे सीधे कॉन्ट्रास्ट होगी एजुकेटेड के ऑपरेशनल डेफिनेशन से. Those parents who can produce certificate of college or university post school education of less than 3 years. तो ये मेरा कट ऑफ, आई वाज टेलिंग यू ना, हमें एक कट ऑफ की आवश्यकता है. तो ये हमारा कट ऑफ है कि स्कूल एंड के बाद 3 साल तक जिसने स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी पे भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, उसके साथ उसका सर्टिफिकेट है 3 years ऑफ एजुकेशन आफ्टर स्कूल, उसको हम कहेंगे एजुकेटेड. एंड जिसके पास लेस देन 3 years का है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, उसको हम कहेंगे अनएजुकेटेड. सो अभी तक जो हमने एक्सरसाइजेस किए उससे क्या रिफ्लेक्शन सामने आए. ऑपरेशनल डेफिनेशन इंडिकेट्स द measurement of the variable and concept, जो भी आप कहना चाहेंगे. रिसर्च के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम वेरिएबल्स की बात करते हैं. बट इवन इफ नॉट वेरिएबल्स, जो भी टर्म्स एंड कंसेप्ट यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव में, हाइपोथेसिस में, उसको हमें ऑपरेशनलाइज एंड मेजरेबल करना है. एंड ये जो मेजरमेंट का स्कीम है, इट वेरीज रिसर्च टू रिसर्च. किसी ने अभी चैट में डाला था एसएससी पास को हम एजुकेटेड कहेंगे. गुड, फेयर इनफ. आपके रिसर्च के लिए, एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, यू कैन से फॉर मी, फॉर दिस रिसर्च एजुकेटेड मीन्स दोज हु हैव एसएससी सीबीएसई स्कूल एंड एग्जाम का सर्टिफिकेट. एंड जिनके पास ये नहीं है वो सब अनएजुकेटेड है. गुड. एक कट ऑफ आपको डिसाइड करना होगा विदाउट गैप एंड ओवरलैप, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. somebody is raising the hand, ऐसे मुझे चैट में दिखाई दे रहा है. You can unmute and ask because I am unable to see the chats and I don't want to try
changing the settings of my laptop. Yeah, somebody wants to unmute, and the one who's raising the hand. Yeah, should we take the discussion at the end? Yes, Asmita ji, you please carry on. The flow otherwise breaks. We'll take questions only at the end. It's going on beautifully. Everybody is enjoying it. So just continue. Thank you. अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट एवरीबडी इज एंजॉयिंग, बिकॉज आगे Yes. का प्रोजेक्ट हमको लेना है जिसमें हम बोर्डम की बात करने वाले हैं. बिकॉज आप चैट देख नहीं पा रहे हैं. चैट में सब लिख रहे हैं कि दे आर thoroughly enjoying and understanding your simple explanation. गुड. एक दो पता नहीं कैसे बट चैट्स फ्लैश हो रहे हैं, बट आई एम अ पुअर रीडर, तो बाय द टाइम मैं वो पढूं वो चला जाता है. सो ओके ओके, सो मोर एग्जांपल्स. अभी ये जो अपना मापन कुमार है, मनाली, Oh my God. अनम्यूट. मनाली की मम्मी अनम्यूट करे. स्पेसिफिक एंड मेजरेबल. सॉरी सब अनम्यूट करे, सब अनम्यूट करे बाद में. अभी मनाली की मम्मी अनम्यूट करे. तो ओके, सो मापन कुमार रुका है हमारे लिए कि हम क्या उसकी कैटेगरी में जा रहे हैं. आर वी ऑल्सो हैविंग दैट अर्ज टू मेक एवरीथिंग स्पेसिफिक एंड मेजरेबल. ये वायरल हो रहा है क्या, डिसऑर्डर हमें देखना होगा. अच्छा, अभी आप रिसर्च के मोड में हो तो आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट द वे यू वांट. तो अभी हाइपोथेसिस भी आप बनाएंगे एंड फिर हम उसको ऑपरेशनलाइजेशन के नज़र से देखेंगे. सो कंप्लीट द स्टेटमेंट. रूरल मिडिल एजेड वुमेन लाइक आमिर खान्स मूवीज मोर देन. I wait for 10 seconds. Write down on your pads. How would you Betty, like to ma'am, we complete? can't see the PPT. Ma'am, Betty, Asmita ma'am is sharing the screen. Asmita ma'am, we are not able to see your PPT. Yeah, Is we are it? not able. Yeah. Okay, Yeah. hold on. Let Suddenly, me just suddenly. figure out. All ऐसे along कैसे we हो were गया? able to see. Just The share must have got switched off accidentally, ma'am. Just start sharing again. Okay. Figuring it out. Shall I start the share from our end? No, just give me a minute. Sure, ma'am. I think now you'll be able to see. Yes, the screen sharing has started. Yes. So you got more time to hypothesize with. So किस तरह से आपने कंप्लीट किया आगे, दैट शोज कि आप कितना स्पेसिफिकली सोचते हो. एटलीस्ट 5 ways of completing this statement. Are you saying rural middle-aged women like Amir Khan's movies more than Salman? अगर आपने ये कॉन्ट्रास्ट किया हो तो भी चलेगा. Okay, I don't know, some windows are opening. Urban, okay, if you want to contrast with urban, you want to contrast rural, young with rural, middle-aged women, or do you want to contrast Amir Khan's movies versus Amir Khan's TV shows? तो जिस भी तरह से आपने ये हाइपोथेसिस कंप्लीट किया होगा, ये 5 तरीके से मैं एक. So we will take one of those. Suppose we finalize this कि हमारा ये अगला रिसर्च प्रोजेक्ट है और हमारा कि मापन कुमार, we make everything unambiguous, consistent, measurable. So rural middle-aged women like Amir Khan's movies more than the urban middle-aged women like Amir Khan's movies. So अभी हमको क्या क्या ऑपरेशनलाइज करना होगा, रूरल और अर्बन. किसको हम रूरल कहेंगे, किसको अर्बन कहेंगे, किसको मिडिल एजेड कहेंगे, किनको विमेन कहेंगे, एंड किसको आमिर खान की मूवी कहेंगे. ऑल दीज टर्म्स हैव टू बी ऑपरेशनलाइज, डीमिस्टिफाइड. हम लोग सब एक पेज पे होना चाहिए कि जब मैं मिडिल एजेड कहूँ, अगर मैंने कहा आई मीन 35 to 45, आई हैव द फ्रीडम
टू से कि मैं 35 to 45 कहूंगी, मिडिल एजेड का को ऑपरेशनलाइज करूंगी. इफ यू वांट टू टेक अप दिस रिसर्च प्रोजेक्ट एंड यू से कि नहीं मुझे तो 40 to 55 को मिडिल एजेड कहना है, you can do that. Obviously nobody would say 12 to 20. So we all know what is the meaning of middle aged, but अभी हम उसको operationalize करेंगे. Only then we can carry out this research, not before that, not until we operationalize all the terms. So final हमारा ये hypothesis है. And हमारे पास क्या options है? To clarify urban and rural, I think I will just go ahead. Either you can check with the local government list, वो बताएंगे कि ये एरिया रूरल में आती है या अर्बन में आती है, और you can operationalize by density of population ले सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस या बैंक है. You can make it measurable कि जिस एरिया में 1 किलोमीटर रेडियस में 3 बैंक ब्रांच है उसको मैं अर्बन कहूँगी. You will have to decide, you will have to operationalize, and you will have to make it, या postal area पिन ले सकते हैं, and you can refer to the government list of rural and urban areas भी है, but you can't keep it a loose ended, you can't keep it open ended for to figure out कि आपके मतलब में आपके रिसर्च में रूरल का क्या मतलब है. You have to operationalize Amir Khan's movies. Isn't this very clear? उसमें क्या ऑपरेशनलाइज करना है? एम्बिग्विटी है कोई? आमिर खान्स मूवीज, उसमें कोई एम्बिग्विटी है? गुड. somebody is saying which period, maybe we will have to say last decade. Yes, somebody is saying whether he has acted or he has produced. So अगर हम कहते हैं आमिर खान की मूवीज, are we talking about the movies produced by him or both immaterial? Or are we talking about cinema hall release, or are we talking about digital platform? So what I want you to reflect is हर word जिसका मतलब हमें समझ में आता है, पहले तो अपने आप को बताओ कि वो मतलब हमको नहीं क्लियर है. Till we make it clear, till we operationalize and lock it, हर एक का मतलब बहुत कैजुअल है. We will have to make it very very measurable and specific. तो अभी तक हमने ये देखा कि we have many options of operationally defining a term used in our research. We have lot of options. We have the to decide कि हमें उसमें से कौन सा लेना है. We need to frame our own definition and stick to it consistently. पता नहीं ये आपको लगता होगा कि क्या बार बार वही बताए जा रही है, बट यू नो व्हाट, इतने सारे डिसर्टेशन रिसर्च रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स एंड थीसिस देखने के बाद मुझे लगता है कॉमन एरर्स में इसका नंबर एकदम टॉप 3 में आएगा कि पीपल फ्लिप फ्लॉप. रिसर्चर्स, amateur researchers maybe flip flop, they don't consistently maintain the meaning of the terms that they are using, and that is I feel the biggest error, because like I said, फिर उसके आगे का सब गड़बड़ा जाता है रिसर्च में if you are not really specific. So again coming back to revisiting Mapan Kumar who loves number, उसको स्माइल करे, इसके लिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. How can we make concepts quantified, measurable, evidence based? How can we look for the indicators? तो ये एक लास्ट का रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे. To compare the participants' boredom during early sessions and later sessions of the day while attending online conferences. ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने वाले जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके शुरू के सत्रों में और आखिर के सत्रों में उन्होंने बोरियत महसूस की है, उसकी तुलना हमें करनी है. तो आई थॉट ये लेट मी मेक इट वेरी कॉन्टेक्चुअल. आप उसी जोन में हो, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो, और सकता है कि बॉर्डर लाइन पे हो, यू आर फीलिंग इंटरेस्टेड, समटाइम्स बोरिंग. तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के शुरू के सेशंस
एंड ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस के लेटर सेशंस, इनकी तुलना करनी है इन टर्म्स ऑफ द बोर्डम एक्सपीरियंस्ड बाय द participants of online conference. Yeah, so people have started I will making a have list to of. interfere here. Sorry, Asmita ji. Yeah, sure. Asmita ji, I'm sorry to interrupt here. No, because we started. We started at quarter to How 3. much time will you take? Yeah. I know we started late. How many more slides do you have? I think I have 5 more slides and I need 7 minutes and 32 seconds. Okay, so precise. All right. Okay, we will carry on. And we will not take the questions. We will post you the questions. Yes, we will post you the questions. We will not be able to take the questions. Yeah. Thank you. And people Sorry. can email me the questions. I'll be too happy to respond. Yeah, तो हमें अभी बोर्डम को Yeah, we'll take the question. यहाँ को गिनना है, मेजरेबल बनाना है, काउंट करना है पार्टिसिपेंट. मैडम आई एम श्योर आप इसके बारे में रेडी होंगे शेयर करने के लिए. तो कौन सी टर्म्स को आपको ऑपरेशनलाइज करना होगा? यू विल हैव टू ऑपरेशनलाइज पार्टिसिपेंट, ने ये कहा है. यू विल हैव टू ऑपरेशनलाइज बोर्डम, ये हमारी की कंसेप्ट है, वेरिएबल है. क्वालिटेटिव टर्म्स में क्वांटिटेटिव डिग्री देखना है, फ्रीक्वेंसी अकरेंस देखना है, जो भी आपको देखना है. We will have to operationalize that. We will have to operationalize early session and later session. किस later sessions आपको किसको शुरू के सेशन सत्र कहेंगे और किसको आखिर के सत्र कहेंगे, वो भी आपको ऑपरेशनलाइज करना होगा. डोंट थिंक कि उसका मतलब तो कितना, इट्स अ कॉमन सेंस यू नो, ये तो किसको नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है. या सो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को भी ऑपरेशनलाइज करना होगा, कॉन्फ्रेंस को ऑपरेशनलाइज करना होगा कि किसको आप कॉन्फ्रेंस कहेंगे, कितने लोग अगर पार्टिसिपेंट्स है तो कॉन्फ्रेंस होती है, कितने घंटे चलती है तो कॉन्फ्रेंस होती है, कितने दिन चलती है तो कॉन्फ्रेंस होती है. वी विल हैव टू ऑपरेशनलाइज दैट. तो उसमें से एक को अभी वी विल ट्राई टू डू टाइप्स ऑफ सेशन. I wanted you to try, but I think I'll just skip that and I'll show you the operational definition. So सेशंस का ऑपरेशनल डेफिनेशन मैंने बनाया है मेरे रिसर्च के लिए, बिकॉज आई हैव द फ्रीडम and duty and responsibility to share. I may stick to this term in my next research. You may not stick to this term when you do a research in this similar variables. So I am saying early in my research refers to first 2 sessions in a conference out of minimum 5 sessions scheduled for the day. तो कोई conference में दिन में अगर 5 सेशंस हो तो ही मैं उनका डेटा लेने वाली हूँ. उसके पहले 2 सेशंस जो है वो सेशंस में जो डेटा मैं कलेक्ट करूंगी उस अर्ली सेशंस का डेटा कहूंगी, और 2 सेशंस में जो मैं डेटा कलेक्ट करूंगी उसको मैं लेटर सेशंस का डेटा कहूंगी. तो कॉन्फ्रेंस का एक दिन है जिसमें 5 सेशंस है. आई एम काउंटिंग बोर्डम, बोरिंग होना, बोरियत महसूस करना, ये मेरा है. पार्टिसिपेंट्स कितने बोर होते हैं शुरू के सेशन में और आखिरी सेशन में, इसकी मुझे तुलना करनी है. So this is my operational definition. What do I mean by early and what do I mean by later sessions? अभी आप मुझे हेल्प करिए to operationally define what boredom is. क्या गिनेंगे आप अगर आपको सब ऑल 250 पार्टिसिपेंट्स का ऊपर से बर्ड्स आई व्यू दिखाई दिया, सब 250 पार्टिसिपेंट्स अगर दिखाई दिया आपको, तो ऐसी क्या चीजें आप ढूंढेंगे जिसको आप मार्क करेंगे कि ये इंडिकेटर है. अंडरस्टैंड द वर्ड इंडिकेटर. दर्शक, क्या बिहेवियरल पैटर्न है जो दर्शाता है कि आदमी बोर हुआ है? क्या है इंडिकेटर, दर्शक क्या है
जिसकी वजह से हमें पता चलेगा। बोर्डम इज इन द माइंड, दिमाग खोल के उसको गिना नहीं जा सकता है। सो हाउ डू आई मेजर इट? आई विल मेजर द इंडिकेटर्स, नॉट द बोर्डम। ठीक से समझ लीजिए। या रेस्टलेस, somebody says रेस्ट, बट रेस्टलेस भी तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है ना। हाउ डू यू नो चाइल्ड द पर्सन इज रेस्टलेस? व्हाट आर द बिहेवियरल इंडिकेटर्स? Yawns, very good. Somebody says yawn, somebody says going back to mobile, excellent. Anything else? Shifting eyes, gazing outside, excellent. I think आप बोर हो रहे होंगे, इसीलिए आप आजू बाजू या खुद को देख के, या whispering to neighbors, excellent. Talking with others, excellent. Mentally switching off, अगर abstract है उसको concrete बनाइए. How do you know that somebody is mentally switching off? Yes. So I'm very happy that you are thinking of, remember the word indicators. You are trying to look for indicators. Yeah. And same indicators will be used for early sessions and later sessions. Imagine ऐसा स्टडी हो सकता है क्या कि अर्ली सेशंस में मैंने ऑपरेशनलाइज किया है कि मैं यॉर्निंग गिनूंगी, एंड सेकेंड सेशन में मैं मोबाइल यूज गिनूंगी? नो। अगर दोनों लेना है, पहले में दोनों, दूसरे में दोनों, या somebody saying नैप लेना, डोज ऑफ होना, oh my god, ऐसा भी हो सकता है क्या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में? oh my god. So कोई डोज ऑफ भी हो सकता है, अगेन यस, आउट ऑफ बोर्डम. So somehow I didn't think of that. So I'm going to share. Yes, somebody says how many times mic को mute unmute किया, fidgety behavior. Okay, excellent. So I have come out with the 10 things, and I'm so happy that you are coming out with more, which again means कि options बहुत सारे हैं. Scribbling, बोर होते हैं तो लोग scribble करते हैं. Hold, dear ones, अभी हमारे पास बहुत सारे indicators जमा हो गए हैं. Thank you very much. But let's come back and focus. Looking out of window, yes. Please come back, come back, come back. Don't give me more examples. Happy कि आप तो बोर्डम में पीएचडी हो, सारे पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी है, बट ये 10 पॉइंट्स मैंने लिए हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ यॉर्निंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग द सिटिंग पोजीशन, यहाँ वहाँ से पोजीशन चेंज करना, फिजिटी एक्शंस, पेन को टक टक करना, टेबल पे तबला बजाना, लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय लीनिंग बैकवर्ड, पीछे रिलैक्स हो जाना, दैट कुड बी एन इंडिकेटर. डिक्रीज लेंथ ऑफ नोट टेकिंग बंद करना, ब्ला 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 ब्ला. इस तरह से 10 इंडिकेटर्स मैंने लिए हैं, विच आई विल स्टडी. वहाँ एक चेकलिस्ट होगी जिसमें मैं 250 कैंडिडेट्स पे कैमरा टिक मार्क करूंगी. ईच कैंडिडेट कितने बार यॉन किया, कितने बार पोजीशन चेंज की, कितने बार मोबाइल चेक किया, एंड उसका क्वांटिफिकेशन करूंगी. सेम चेकलिस्ट आई विल यूज इन माय लेटर सेशंस. And possible comparison is possible because I will have the number in my hand जिसका टोटल करके स्कोर निकाला जा सकता है, स्कोर ऑफ बोर्डम. सो अभी रिफ्लेक्शंस जमा किए हैं. एक रिफ्लेक्शन और है कि ऑपरेशनल डेफिनेशंस कन्वर्ट abstract terms into evidence based measurement. Yeah, Prabir raised his hand. Prabir, hold on. अगर टाइम पे खत्म होता है I will take your questions, otherwise you can email me. Operation definitions make things compare. Comparison possible होगा जब consistently मेरे operational definitions and उसके scheme मेरे पास ready होगा. What do you think of following operations? Educated parents means those parents who know English well. Do you think ये operational definition education की सही है? And then there are some other examples. I'm sure you get the PowerPoint, so you can have a look. Yes, Bhola Prasad is saying no. Yeah, because अगर मैं ऐसे सोचती हूँ कि जिसको इंग्लिश आती है वही एजुकेटेड है, then it is my personal bias which is playing a role in it. I have to be very careful about it. अगर मुझे इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश नॉन स्पीकिंग का रिसर्च करना है,
must say comparison between parents knowing English and not knowing English. Why am I saying educated and uneducated? So personal biases बहुत सारे हमारे दिमाग में है. प्लीज पहले ये एक्सेप्ट करिए. नेवर से कि मेरे तो पर्सनल बायसेस नहीं है. दुनिया में ऐसा कोई नहीं है. We all have our personal biases. Let's open eyes, reflect, judge ourselves objectively. जब हम जान लेंगे कि हमारे बायसेस क्या है, हम लोग अच्छी तरह से रिसर्च से उसको बाहर रखेंगे. मापन कुमार और खुश होगा जब हम पर्सनल बायसेस को बाहर रख सकेंगे. So the reflections so far, we have to frame the operational definitions keeping personal biases minimum. I will not say rule it out because that's not possible. We will have to have our operational definitions valid. मतलब जो गिनना चाहते हैं वही गिनना चाहिए. कह रहे हैं एटीट्यूड, गिन रहे हैं ओपिनियन. कह रहे हैं ओपिनियन, गिन रहे हैं अवेयरनेस. कह रहे हैं अवेयरनेस, गिन रहे हैं कंफर्ट लेवल. कह रहे हैं कंफर्ट लेवल, गिन रहे हैं एफिकेसी. इट इज अ वेरी वेरी कॉमन एरर. एंड ये एरर इसलिए होते हैं कि ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो है वो अच्छे वैलिड तरीके से नहीं बनाए हैं. एंड अगेन आई हैव बीन सेइंग आवर ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैव टू बी कंसिस्टेंटली यूज्ड. होमवर्क के लिए यू आर गोइंग टू पावर पॉइंट, ट्राई टू यूज दिस, कंपेयर to compare the fear of ghost experienced by security guards during day duty and night duty. So again, two questions. List of terms for which you have to make the operational definitions. And एक को fear of ghost. इसको लेके आप उसको operationalize, measurable, smart, specific, quantified बनाने की कोशिश करिए. ऐसे आप 10 या 15 करेंगे, more आप क्वांटिफिकेशन की दिशा में आपकी गाड़ी चल पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल, स्मॉल व्हीकल्स break traffic rules more than the big vehicles. Make a list of what all you need to operationalize. Select the variables and उनको operationalize करिए. If you really want to do research और ये conference आपने for the sake of CRE points नहीं की है, if you're really interested in either doing research or consuming research, खुद को रिसर्च करना है या किसी का रिसर्च आपको पढ़ना है और इम्प्लीमेंट करना है, प्लीज डू स्किल डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस. कुछ थियरी यहाँ पे मैंने जोड़ दी है विच आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपको पूछा जाए कि अरे हुद्दार मैडम ने ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्या पढ़ाया और आप बता दे कि हमने सिक्योरिटी गार्ड कॉन्फ्रेंस में बोर होना और होम कुक फूड क्यों अच्छा नहीं है ये सब सीखा, तो पता चले कोई कहेगा कि आगे किसी को कोई हुद्दार मैडम को बुलाएगा या नहीं कॉन्फ्रेंस के लिए. थोड़ी थियरी मालूम है, स्किल डेवलपमेंट का बेस वही है, इसलिए आई हैव जस्ट एडेड सम पॉइंट्स ऑन व्हिच वी हैव ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड. डेफिनेशंस के नमूने मैंने कुछ दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल के है, एंजाइटी के है, अग्रेसिव बिहेवियर के है. कंट्रास्ट करने के लिए मैंने बुकिश और स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है और बिहेवियरल इंडिकेटर्स दिए हैं so that you know what is the difference between the two. Very simple, but ध्यान से reflect over it and then it will open the doors of quantification. And coming back to the prologue, revisiting it, सिंपल सा जवाब है कि पहले 3 डेफिनेशंस आर साइंटिफिक बुकिश डेफिनेशन, और जो अपना हीरो है आज का मापन कुमार, जिसको डिसऑर्डर है क्वांटिफिकेशन, ये डिसऑर्डर आई वांट यू ऑल टू गेट इन्फेक्टेड विथ, कि जहाँ पे हमें अर्ज की ज़्यादा स्पेसिफिक समझ में आए, एंड दैट इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन. Because see, you can't bypass the number, you can't bypass the indicator, and you can't bypass it being very very specific. So one line conclusion आपका क्या है? When you undertake a research project, don't forget to please share your email. Yes, I will. It was there on the first slide. So when you will get your PowerPoint, you will get my email ID. I'll share it again.
one line conclusion क्या है? When you undertake a research project, don't forget to invite Mapan Kumar. Is that your conclusion? No, I don't think that's your conclusion. That should be your conclusion. The conclusion should be when you undertake a research project, don't forget to remain evidence based, behavioral, consistent, measurable throughout your project by framing valid and reliable operational definitions. जिसकी operational definition सही, उसकी रिसर्च की गाड़ी सही दिशा में जाने की संभावना है. So you could ensure that, and I would wind up. ODs convert a casual person into a researcher. तो ये अगर आपके दिमाग खुल गया है, थिंकिंग मेक इट स्पेसिफिक, मेक इट मेजरेबल. कोई भी कुछ भी बताता है, कब आओगी? थोड़ी देर में. नहीं चलेगा. 1 घंटा या 2 घंटा, 1-1.5 घंटा. नहीं चलेगा. 1 घंटा या 1.5 घंटा. When you make everything measurable and specific, that is temperament you will have for a good research consume करने के लिए भी और करने के लिए. So thank you for discussing boredom along with me rather than experiencing it. I hope you did not experience it and you enjoyed discussing the boredom. And Very much. Mapan Kumar wind up कह रहा है और वो आपको जाते जाते ये बात बता रहा है, don't forget me and most importantly I am within you. आपके अंदर, आपके सबके अंदर ये क्वांटिफिकेशन एंड स्पेसिफिक रहने की इच्छा और अर्ज होती है. Don't suppress it. You know, let it be part of your communication, let it be part of your thinking. And that is it. So 7 minutes and 31 seconds, Dr. Bhan, and here I go.